Good morning, dear students. I welcome you all in computer class. In this video, we will cover the topics of formulas and functions of your chapter number 2. I have already sent you videos about the cell referencing. You can watch this also. Okay, so let's start it. In this video, we will cover the two functions or two topics, that is formulas and functions. Okay, and we will be discussing about how the Microsoft Excel is helpful to make that kinds of formulas and functions. Okay, so here's we go for our MS Excel. So what is the MS Excel? The first of all, the basic things is about what is MS Excel. So basically, whenever you need some type of calculations in a complex mode or you can in a bulk mode, जब भी आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना होगा तो आप MS Excel का यूज़ करते हो. जैसे 100 ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मार्क्स हैं, उनको आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो दैट इज़ द पर्टिकुलर एग्जांपल टू यूज़ एनी MS Excel. Okay, Microsoft Excel. So first of all, what is Microsoft Excel? It is used to organize data, perform calculation and analyze data. Okay, आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, आप उसका कैलकुलेशंस कर सकते हो, मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो. एनालाइज मीन्स उस डेटा में से पर्टिकुलर रिजल्ट को फाइंड आउट करना. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम विच टुगेदर फॉर्म अ सेल. I already explained you what is cells, what is rows, and also I am doing that particular note कि जब भी आप intersections of rows, जब भी ये कॉलम है और ये रो है, इसका जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल. दैट इज वन सेल. जो ये येलो फुल ऑफ फील्ड है दैट इज नोन एज द सेल. ओके, सो इट इज नोन एज वन सेल. Uses formula and function to perform calculation. So what is basically MS Excel do? You can use the formulas and function to perform basic calculation and complex calculation also. Okay, and cell range is, what is cell range? Whenever you select multiple cells in MS Excel sheet, it is called cell range. For example, I am selecting from this to that cell, so it contain that particular cell range. Okay, that all cells contain a particular range. I hope you got my point about the cell range. Next. Okay, so next is about the formulas. I'm explained you how the formula are working. Whenever you go for a addition formula, how you can add that formulas. Here the some of the examples also mentioned there. Okay, the first one is addition. Whenever you perform addition, so first of all you have to give the cell address. And cell address, what is cell address? Suppose like that one B, if you want to select this one cell, if you want to select this one cell and you have to select B2. Okay, so that is the row name 2 and column name is B, so that one particular cell will be selected. Okay, so ऐसे आप एक बेसिक सिंपल फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन योर वर्कशीट. ओके, एंड फॉर्मूला यूजर भी बना सकता है और इनबिल्ट फॉर्मूलाज भी आपके एक्सेल में होते हैं. आर यूजर्स कमांड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज योर फॉर्मूलाज. Okay, help perform simple and complex calculation. I have already explained you how you can do the complex calculations and simple calculation by using formulas. So here's you can see that the some of the examples formulas are there: addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation and negations. Okay, and you can do that on your Excel worksheet or your Excel software. Next one about the formulas, how you can implement those types of formulas. First of all, you have to mention the cell address. As you can see that the cell address is how you can select the cell address. This is also I explained to you how you can write the formula. The formula is always begin with the equal to operator. Okay, in the previous video I also explained that. In that video also I am explaining you the equal operator is must sign for beginning a formula. Okay, so equal operator is the starting of any formula. Help perform simple and complex, that is all mentioned out. Okay, and have cell addresses which are values within them. Okay, which means that कि जब भी आप एक सेल एड्रेस लिखते हो ना, उसका मतलब क्या है कि आप उसकी वैल्यू को लिख रहे हो. जब भी आप एक फॉर्मूला बना रहे हो ना, उसका मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को मेंशन कर रहे हो. जैसे यहाँ पे
C3 लिखा हुआ है, ये जो मैंने व्हाइट मार्क किया है, जो अपना येलो मार्क किया हुआ है, दैट इज द C3 सेल। तो यहाँ पे मैंने मेंशन ऑलरेडी किया है कि आपका ये C3 है। ओके, उसके बाद इक्वल टू प्लस ऑपरेटर के साथ मैंने उसके बाद क्या किया है, उसके बाद आपका जो मैं आपको जूम करके बताता हूँ दैट वन। ओके, तो यू कैन सी दैट कि हाँ आपका ये जो पूरा सेल है, ये आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है जिसमें सेल एड्रेस है। ये D3 है तो आगे आपने D3 लिखा है, उसके बाद E3 है तो आपने E3 लिखा है। तो आपने इन सभी को ऐड किया है, ये सारे सिलेक्ट सेल हुए हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड इनको आपने ऐड कर दिया है, एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला इन योर MS Excel. As you can see that the formula bar is also showing that your formula. Okay, I hope you got my point about the cell address and how you can write the formula. So let's move next further. And cell reference, as I cleared about the video, the cell reference is a particular cell formula you can use in the multiple cells, which means that कि आप एक फॉर्मूला को बहुत सारे सेल्स में उनके सेल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ है फर्स्ट सेल में, और वही आपका सेम फार्मूला आपने ड्रैग करके सभी आपके जो सेल्स हैं, एम्प्टी सेल्स हैं, उसके में आपने ड्रैग कर लिया और आपका सभी जगह वो सेम फार्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, अ सेल और ए रेंज ऑफ सेल इज यूज्ड इन फार्मूला। ओके, यहाँ पे आपकी रेंज यूज हो रही है। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपका सेल रेंज सेलेक्ट हो रही है। तो यानी सेल रेंज क्या होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो होती है। अलाउ यू टू यूज डेटा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट, आप किसी भी पार्ट से अपने जो डेटा है उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, and these are the basic examples. And mixed type of cell referencing is that whenever you use a dollar sign, one of the cell address with the dollar sign and one of the is middle between the dollar sign. Okay, it combine both the relative and the absolute cell referencing. And what is cell referencing? Previous video I have already sent it to you, please watch it if you don't know about the cell referencing. Okay, so move it further. So here you can see that the first one, the relative cell addressing. Okay, you can see that I'm implementing the formula is here. Okay, so basically my formula is equal to operator start and C of 3. First of all B of 3. Okay, so B of 3 I implemented here, B of 3 and plus उसमें कर दिया मैंने, क्या प्लस किया है, C of 3. तो C of 3 मैंने उसमें प्लस कर दिया, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 1 + 2 3। अभी इसी को मैंने ड्रैग करके बाकी के सारे ऊपर भी ले आऊँ और मेरा ऑटोमेटिक जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। जो मेरा यहाँ पे B3 था वो B4 हो चुका है, ये नेक्स्ट वाले सेल में देखा। तो इसका रिजल्ट आपको सेम एज इट इज शो हो रहा है, जैसे 3 + 4 7 रिजल्ट आएगा, 5 + 11 आएगा। ओके, so I hope you got the point about the cell referencing, how you can change those cell referencing. So move further. So here's your question number 3. I have already cleared in the Zoom classes, you can notice from that. Okay, so from started from this one and completed here your question number 3 about the cell ranging and cell referencing. Okay, so here's about discussing about some type of errors that you can see in your MS Excel operator. The first one error is that kind of error, and this is known as the column is not enough space to complete write your formula, which means that कि आपने इतना फॉर्मूला को लेंथी लिख दिया है कि उसमें सेल में जो है वहाँ पे स्पेस ही नहीं बची आपके फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो इसका जो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, इसका सोल्यूशन क्या है, आप उस कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। ओके, एक्सटेंड करके उस कॉलम की विड्थ को बढ़ा दीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला है आप वहाँ पे लिख सकते हो। एंड दिस वन, ये जो एरर आएगा इसका मतलब क्या है कि आपने एक रॉन्ग टाइप आर्गूमेंट दिया है। आर्गूमेंट मतलब कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हो ना, तो आपने वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे दी है। स्ट्रिंग मतलब कि आपने किसी नेम को ऐड कर दिया है वहाँ पे, जैसे कोई भी नेम हो सकता है, जैसे जेम्स नेम है, तो आपने वहाँ पे नेम को ऐड कर दिया है विद द नंबर। आप जेम्स को ऐड कर रहे हो किसी इंटीजर के साथ या ऐसे कोई वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे ये वाला एरर आएगा आपके जो MS Excel है। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑपरेंड्स को चेक करो, मतलब जो आपके ऑपरेटर्स हैं जो आपने प्लस माइनस किया हो उसको चेक कीजिए, या अपने आर्गुमेंट्स को चेक कीजिए। ओके, एंड थर्ड वन इज मोस्ट कॉमनली एरर इज दैट डिवीजन बाय जीरो। व्हेनेवर यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, दिस एरर विल बी शोन टू यू इन योर MS Excel सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसका मतलब है कि आप डिवाइड कर रहे हो किसी चीज़ को जीरो से। ओके, यहाँ पे आपने वैल्यू को चेंज करना होता है, इसका सोल्यूशन यही होता है।
उसके बाद इस टाइप का एरर कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आपने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कुछ भी आर्गुमेंट डाल दिए, आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है, आपने खुद से कुछ ना कुछ वैल्यू डाल दी है, वो वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नेम। इसको हम बोलते हैं कि आपने फॉर्मूला को जो रेफरेंस दी है ना वो है ही नहीं है फॉर्मूला। जैसे सपोज कीजिए आपने इक्वल टू ऑपरेटर के साथ सम का कुछ फॉर्मूला लिखा है, SUM, सम का आपने फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और आपने इसको अभी यूज कर रहे हो, तो आपने यूज किया है SOM, सोम। आप इसका रेफरेंस दे रहे हो सॉन्ग, तो उसका क्या मतलब है कि आपका ये एरर आ जाएगा कि आपका जो फॉर्मूला का रेफरेंस है दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन योर MS एक्सेल। ओके, एंड इसको आप फॉर्मूला को चेक करोगे, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन इज हैशटैग ऑफ रेफरेंस। ओके, एक्सेल कांट लोकेट द रेफरेंस सेल और रेफरेंस। ओके, जैसे आपने कोई सेल का एड्रेस दिया है और वो सेल एड्रेस आपकी वर्कशीट में प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे आपने सेल एड्रेस दे दिया है 01B, तो ये सेल एड्रेस, इस तरह का सेल एड्रेस आपकी लोकेशन पे नहीं होता, आपकी एक्सेल शीट में नहीं होता। सो इस तरह का एरर वहाँ पे आपको शो होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नम ऐसे हैशटैग करके आपका नम का एरर आ गया, इसको आप बोलते हैं इनकरेक्ट यूज ऑफ नंबर, आपने इनकरेक्ट यूज किया किसी नंबर का। नेक्स्ट वन इज नल, तो इसका मतलब है कि आपने इंटरसेक्शन किया है टू एरियाज का जिसका इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। ओके, आपने उसका इंटरसेक्शन कर दिया है, इसको आप बोलते हैं नल टाइप ऑफ एरर। ओके, so I hope you clear all about type of errors. Next one we have also there in your book, you can read from that particular also. Okay, and sixth one answer is 2 points को explain करना है आपने, ये points को explain करना और ये वाला point explain करना है। Let's move further and let's talk about some of the functions. What are functions? So whenever you talk about the formulas are not inbuilt. You have created the formula, you can create the formula, but formulas are not inbuilt, मतलब वो पहले से प्रेजेंट नहीं होते, आप उसको क्रिएट करते हैं फॉर्मूलाज को। बट फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन जो होते हैं वो इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब पहले से ही प्रेजेंट फॉर्मूलाज हैं आपके MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में, आपने जस्ट उनका नाम टाइप करना है और यू कैन सेलेक्ट दोज टाइप ऑफ फॉर्मूला जिसको आप फंक्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट आर दीज आर इनबिल्ट फॉर्मूलाज हु परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस आपका प्रोवाइड होता है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सम लिखा हुआ है ना, सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे फंक्शन यूज हुआ है, ना कि आपका फॉर्मूला। फंक्शंस क्या होते हैं, जो पहले से फॉर्मूलाज आपकी MS एक्सेल में स्टोर्ड हैं, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू कंप्लीट। ओके, so next one is help perform simple and complex calculation, that is also relevant to your formula because formulas also help you to complete the calculation of simple and complex. Okay, and it save time बिल्कुल, क्योंकि आपको कुछ भी फॉर्मूला क्रिएट करने का टाइम नहीं लगा, आपने जस्ट उसको जस्ट सम लिखा और सेल एड्रेस दे दिया और आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है पहले से। ओके, एंड ये आपको हाँ मिस्टेक होने से बचाता है आपको, आप कुछ अलग से मिस्टेक नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला को लिखने में मिस्टेक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऑलरेडी इनबिल्ट फार्मूलाज हैं जो बने हुए हैं, उसको हम ही बोलते हैं फंक्शंस। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अभी फंक्शंस की सम है, एवरेज है, काउंट है। सम क्या करता है, एडिशन करता है, एवरेज क्या करता है, एवरेज काउंट करेगा। काउंट क्या करता है, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है वो काउंट करेगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, किसी टू नंबर्स के कंपैरिजन में किसी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। इट कैन ऑल्सो सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हैव इनपुट कॉल आर्ग्यूमेंट। इनपुट्स मीन जो आपने सेल एड्रेस दिया है ना उसको हम इनपुट बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट। ओके, so whenever you complaining about or any doubt about argument means you have given some type of input. Okay, some kind of cell address, also called the argument. And always just like formula, it also begin with the equal to operator. Okay, so next here's your fifth one answer. I am also explained you in the Zoom class, and this is your fifth one answer of your functions. Okay, and formula functions is also explained to you. And in this chapter you have basically learned about the formulas and function, how you can select the range, how you can motivate demotivate the range, how you can change the width of the range. Okay, and how to implement those type of formulas to performing complex and simple calculations. Okay, for this class, thank you for today.